تو مصلی حسین کا مسجد علی کی ہے، تو مصلی حسین کا مسجد علی کی ہے، تو مصلی حسین کا جاگیر کبریا ہوئی تقسیم اس طرح کعبہ علی کا عرش مولا حسین کا، کعبہ علی کا عرش مولا حسین کا۔ تو ایک مولا علی کی بارگاہ میں شعر پیش کرنا ہے، کیونکہ شعر تو بہت پیش کرنے تھے لیکن گلے کی خرابی آڑی آ رہی ہے، اور میرے آل پاک جو میرے آل پاک ہے، میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آل پاک ہے، اس کی شان اتنی بلند ہے، اس کی شان اتنی بلند ہے، تو اس طرح عبادت کو عام کرتے ہیں، سجود ان کی گلی میں قیام کرتے ہیں۔ کہا خدا نے نبی سے بنا کے جنت کو، اسے بھی ہم تیرے بچوں کے نام کرتے ہیں، اسے بھی ہم تیرے بچوں کے نام کرتے ہیں۔ تو محراب میں علی ہے، محراب میں علی ہے، تو منبر پہ ہے علی، کعبہ گواہ ہے، دوش پیغمبر پہ ہے علی، کعبہ گواہ ہے، دوش پیغمبر پہ ہے علی، اور دنیا کے انسانوں سے وہ کتنا بڑا ہے جو صاحب معراج کے کندھوں پہ کھڑا ہے، جو صاحب معراج کے کندھوں پہ کھڑا ہے۔ اور میرے مولا علی کی وہ ہستی ہے کہ جنہوں نے نہ ساری زندگی عروج کو چاہا ہے، نہ کسی بلندی کی تمنا کی ہے، نہ کسی فضیلت کو ڈھونڈا ہے، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ کائنات کی ساری فضیلتیں، کائنات کی ساری بلندیاں، کائنات کے ساری عروج جیسے تلاش کرے اسے علی کہتے ہیں، اسے علی کہتے ہیں۔ پیے گھول کر، پیے وہ گھول کر قرآن بھی اگر موسن، تو مریض بغض علی کو شفا نہیں ملتی، مریض بغض علی کو شفا نہیں ملتی۔ اور سنو میں کیا کہہ رہا ہوں کہ محراب میں علی ہے، محراب میں علی ہے، تو منبر پہ ہے علی، محراب میں علی ہے، تو منبر پہ ہے علی، کعبہ گواہ ہے، دوش پیغمبر پہ ہے علی، اور ہجرت کی شب رسول کے بستر پہ ہے علی، ہجرت کی شب رسول کے بستر پہ ہے علی۔ جنت علی کے ملک ہے، جنت علی کے ملک ہے، جنت علی کے ملک ہے، کوثر پہ ہے علی، کوثر پہ ہے علی۔ بات اب نتیجے پہ آن پہنچی ہے کہ ہر جا علی ملیں گے، ہر جا علی ملیں گے، ہر جا علی ملیں گے، نہ دامن بچائیے، ہر جا علی ملیں گے، نہ دامن بچائیے، اگر بچنا ہے علی سے تو جہنم میں جائیے، کیونکہ ایک ہی راستہ باقی بچتا ہے۔ تو کعبہ تو سعادت کی جگہ ہے، کعبہ تو سعادت کی جگہ ہے، کعبہ تو عبادت کی جگہ ہے، کعبہ تو سعادت کی جگہ ہے، کعبہ تو عبادت کی جگہ ہے۔ اگر علی سے بغض ہے، اگر علی سے بغض ہے تجھے تو قبلہ بدل لے، کعبہ تو علی کی عبادت کی جگہ ہے۔ تمہارے مرشد کریم مختوم محمود مستوار کلندر دامن برکات عالیہ فرماتے ہیں کہ جو علی کو مشکل کشا نہیں سمجھتا، جو علی کو مشکل کشا نہیں سمجھتا، خدا اس پہ کرم روا نہیں سمجھتا، خدا اس پہ کرم روا نہیں سمجھتا۔ جو پکارتا ہے، جو پکارتا ہے ہر دم علی، علی محمود، علی اس کو خود سے جدا نہیں سمجھتا، علی اس کو خود سے جدا نہیں سمجھتا۔ بہت سفر کر کے آئے ہیں، عالمی شہرت یافتہ ہیں، یہ سید آل رسول ہیں، سید فرد عباس شاہ قاضوی صاحب، نہایت محبت کے ساتھ انہوں نے حاضری پیش کرنی ہے، تو ان کو آپ نے ویلکم کرنا ہے پورا سینے کا زور لگا کے کہ حضور کے غلام آئے تھے، انہوں نے حضور کی خاطر اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے حضور کی بڑھائی کا، اللہ کی بڑھائی کا، حضور کی بڑھائی کا اور مولا علی کا نعرہ لگایا تھا، اللہ کے ولی کا نعرہ لگایا تھا۔ دونوں ہاتھوں کو ذرا بلند کر لو، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ تیرا پیار میرا پیار، جس نے چھیڑے دل کے تار،
مستوار، حق مستوار، حق کلندر، حق کلندر، حق کلندر۔ باقاعدہ طور پر بسم اللہ ظفر اقبال ظفری صاحب الملك قدوس السلام المؤمن سبحان الله المؤمن المهيمن العزيز العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون آمنت بالله صدق الله العظيم۔ بس صرف دو اشعار نعت کے پڑھنے ہیں، اس کے بعد اصطلاح خطابات کا سلسلہ ہے۔ سب پڑھیے صلی اللہ علیہ کا یا اور آتی ہے لب پر نعت پاک کا نغمہ، کل بھی تھا اور آتی ہے، سارے بولو لب پر نعت پاک کا نغمہ، کل بھی تھا اور آتی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ، میرے نبی سے میرا رشتہ، کل بھی تھا اور سارے اپنی محبت کا ثبوت دیتے ہو، پڑھ لیجئے میرے نبی سے میرا رشتہ، میرے نبی سے رشتہ، کل بھی تھا اور میرے نبی سے میرا رشتہ، کل بھی تھا اور ارے بدلا دو گستاخ نبی کو، بدلا دو دشمن نبی کو، غیرت مسلم زندہ ہے، آقا پہ مر مٹنے کا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے جمع غفیر چکوال 15 چوک میں موجود ہیں اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں اور ظفر اقبال ظفری صاحب نعت شریف پڑھ رہے ہیں۔ کل بھی تھا اور آتی ہے، محبت کا ساتھ دیا۔ دو منٹ کے لیے میں تمام ساتھیوں سے گزارش کرتا جاؤں گا، آپ نے اپنی حاضری لگوانی ہے، اپنی محبت کا پیغام آگے پہنچانا ہے۔ سب سے پہلے میں گزارش کروں گا نجم الحسن کاظمی صاحب سے کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ نجم الحسن ندوی صاحب شاہپور سعیدان سے ہماری لیلی کے ساتھ شامل اور یہ اپنے الفاظ سے اپنے مضمون سے ہمیں نوازیں گے۔ اپنے بھائیوں، بزرگوں اور بچوں کو آج کے اس احتجاجی ریلی کے اوپر آنے اور اس کا حصہ بننے کے لیے میں آپ دوستوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یہ کوئی سیاسی ریلی نہیں تھی میرے دوستوں، میرے بھائیوں،
होकर और चकवाल 15 चौक के ऊपर पहुंचकर इन दोस्तों का ये इज्तिमा आज क्या साबित करता है कि हम गुलाम हैं, गुलाम हैं, गुलाम हैं, गुलाम हैं, गुलाम हैं, गुलाम हैं। मैं एक छोटी सी बात आपके कानों में गोश गुजार करता हूं। अगर कोई ये समझे कि इस रैली का यहां तक चलकर आने का क्या मकसद है, फराज को क्या इसका नुकसान होगा, या कौन सी ऐसी थ्रेट है जो ये 4 बंदे मिलकर देंगे और ये थ्रेट और ये आवाज फराज या उस फराज के हरामजादे के कानों तक पहुंचेगी कि जिसने हमारे पाक नबी, जिसने जनाबे खत्मी मर्तबत की इहानत की, तौहीन की, तो हम मर जाते इस इहानत से कबल। खुदा हमारी जाने ले लेता, हमारी ना आंखें देखती वो खाके और ना ये कान सुनते। मैं दोस्तों के कानों में एक बात डालता हूँ, गाड़ियाँ ट्रांसपोर्ट दोनों तरफ से रवां दवा जिसको आप दिखाना चाहते हैं वो देख रहा है। आज अगर आप यहाँ पर आए हैं तो उसकी खुशनुदी के लिए आए हैं, न किसी सियासी की खुशनुदी के लिए आए हैं, न किसी भाई के कहने पर आए हैं। आपका आज का ये अमल खुदा के यहाँ इस कदर मकबूलियत रखता है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहाँ चीज है क्या समझता है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहाँ चीज है क्या तो वो कलम तेरे हैं। कोई बंदा आज की रैली का शरीक अपने आप को कम कर न समझे, आज मोहम्मद का गुलाम बनकर आया है। और कोई बंदा ये न समझे कि उसकी आवाज उन ईवानों तक नहीं पहुंच रही। मैं फिर उस मौके की मिसाल देता हूँ कि वो एक छोटी सी चिड़िया जो नारे नमरूद के ऊपर जो आसमान तक जिसके शोले जाते थे, और वो चिड़िया आती थी एक मुंह के अंदर पानी का कतरा भरकर आग के ऊपर फेंकती थी। किसी चिड़िया से पूछा गया कि ऐ भी चिड़िया तू बता कहाँ ये नारे नमरूद और कहाँ ये तेरी चोंच के अंदर पानी का एक कतरा। मगर क्या जवाब है उस चिड़िया का? उसने कहा मुझे इससे कोई गरज नहीं कि मेरे इस एक कतरे से ये आग बुझती है कि नहीं। मैंने ये देखना है कि मेरे परवरदिगार ने मेरी कैपेसिटी, मेरी सलाहियत कितनी रखी है और मेरी जिम्मेदारी क्या है। मेरी कैपेसिटी ये है कि आज मैं पानी का एक कतरा उठा सकती हूँ, और मेरी जिम्मेदारी ये है कि वक्त का रसूल, वक्त का खुदा का नुमाइंदा इस वक्त अजाब में है और मैंने उसको बचाना है। बस मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी करती हूँ। ये दोस्त जो इस चौक के ऊपर 15 चौक के ऊपर आए हैं, आज ये अपनी कैपेसिटी के मुताबिक अपनी जिम्मेदारी पूरी करने आए हैं। हमने अपने दिल से फराज के इन खाकों और इहानत के खिलाफ बरात का इजहार किया है। ये सारे के सारे रसूल के गुलाम हैं, गुलाम हैं, गुलाम हैं, रसूल के गुलाम हैं, गुलाम हैं, गुलाम हैं, रसूल के गुलाम हैं। अमेरिका मुर्दाबाद, 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 अमेरिका मुर्दाबाद, 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 फ्रांस मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, फ्रांस मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बहुत शुक्रिया माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत अंदाज के अंदर अपने आपके सामने अब गोया हैं निसार गुजर साहब चक बाकर शाह जो हमारी रैली के साथ शामिल हैं। दोस्तों, भाइयों, आज के दिन ये जो रैली का एहतमाम किया गया है, ये दोस्तों का आप सल्लल्लाहु से मोहब्बत का इजहार है कि हम आप सल्लल्लाहु की नामूस की खातिर किस हद तक जाने को तैयार है। ये सियासी इज्तिमा हर रोज़ होते रहते हैं, हम सियासी इज्तिमात में शिरकत करते हैं, लेकिन ये सियासी इज्तिमात ये अपनी जगह भी हैं, लेकिन आप सल्लल्लाहु की नामूस पे हम अपनी जान भी देने को तैयार हैं, मर मिटने को तैयार हैं। हम अपने
अपने हबीब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस की खातिर अपनी जानों का नजराना पेश करने के लिए हम वक्त तैयार हैं। और मैं इस इज्तिमा के हवाले से फ्रांस के सदर को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि तुम ये खाकों के हवाले से जो तुमने बकवासात किए हैं, हम इन बकवासात की पुरजोर मजम्मत करते हैं। और अमेरिका, यूरोप का जो भी मुल्क हो, जो भी साम्राज्य कुलते हैं, उनकी जो आप सल्लम के हवाले से बकवासात करते हैं, हम उनकी सख्त मजम्मत करते हैं। और मैं आप सब साथियों और हुकूमत पाकिस्तान से अपील करता हूँ कि उनके साथ, फ्रांस के साथ सफारती तल्लुकात मुनक़ता किए जाएँ और जो फ्रांस की मसनूआत पाकिस्तान के अंदर बिक रही, उनका बाइकाट किया जाए। अब आपके सामने गोया हैं मिर्ज़ा तबस्सुम साहब, ये अपने अल्फाज में गोया होंगे। कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौह कलम तेरे हैं। और मैं ये अपने इक़्तिदार और अपने हुकूमत से अपील करता हूँ कि फ्रांस का बाइकाट किया जाए और उनकी प्रोडक्ट का भी बाइकाट किया जाए। बाकी इंशाअल्लाह हमारी जान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत पे कुर्बान। शुक्रिया। दीवाने हैं तो तभी निकले हैं ना, दीवाने हैं तो तभी रोड पे खड़े हैं ना। मैं मीडिया वाले साथियों से भी कहूँगा कि आप भी मुखलिस हो जाएं, आप भी उस नशरियात को नजर किया करें जो सरकार की हक में हो, जो बकवासात भरी हो, उसे रद्द कर दिया करें। हम अपने नबी के दीवाने, हम अपने नबी के दीवाने, सरकार का खाता बहुत बड़ा बोल रहे हैं, हम अपने नबी के दीवाने, हम अपने नबी के दीवाने। अब खानपुर से आए इस रैली के साथ मलक शहजाद साहब गोया हैं, ये अपने अल्फाज में आप लोगों को महसूस करेंगे। मलक शहजाद साहब, कोई जलसा नहीं है, कोई सियासी तकरीब नहीं है, ये जो है ये नबी के जियालों की तकरीब है। और जो हमारे उलमाए इकराम आए हैं, जो हमारे दोस्त आए हैं, मैं उन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ। और फ्रांस के सदर हैं, ये बीमारी रैली के साथ शामिल हैं। आवाज़ उठानी चाहिए। आप सब कोई किसी का ज़ाती मसला नहीं है, ये दीन का मसला है और ये इस्लाम का मसला है। मैं तमाम आने वाले मुअज़्ज़िज़ मेहमानों को खुश आमदीद करता हूं। अब मकसूद साहब आते हैं और अपने अल्फाज से आपको अश्कारा करते हैं। सबसे पहले मकसूद साहब, इस सिलसिले में आज आपने ये कदम उठाया, मैं समझता हूँ कि ये हमारा ईमान और हमारा जो यकीन है उसकी तायीद है। ये फ्रांस की हुकूमत ने जो हमारे पाक रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन तमाम अतराफ से मैं समझता हूँ ट्रांसपोर्ट जारी है। सिर्फ नहीं है, हमारा मकसद पुरअमन एहतजाज करना है, ना कि किसी को तकलीफ देना है। हम खानपुर से खानपुर सेक्रेटेरिएट से चकवाल 15 तक जो रैली लाए हैं, ये रैली पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड कराने के लिए और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत की है। इसका सरकारी तौर पे एक भरपूर जवाब दिया जाए और आला ऐवानों में इसके खिलाफ भरपूर मज़म्मत की करारदाद पेश की जाए और अक़वाम मुत्तहिदा में ऐसी कानून साजी पे जोर दिया जाए ताकि ये पूरी दुनिया के जो मज़ाहिब हैं उनका अदब एहतराम किया जाए। और मैं समझता हूँ कि हुकूमत को ये हर वक्त इस पे नज़र भी रखनी चाहिए। और आज
जो भी फ्रांसीसी और यहूदी प्रोडक्ट है हमें उसका बाइकाट भी करना चाहिए, ताकि उस हुकूकों को उन लोगों को मैसेज जाए कि मुसलमानों का दिल मजरूह, उनका इस्लाम मजरूह, उनका दीन मजरूह करने से ताकि उनको नुकसान भी पहुंचना चाहिए। और मैं यहाँ पे आए हुए तमाम लोगों का शुक्रिया भी अदा करता हूँ और इस ईमान और जज्बे के साथ आपके कंधों के साथ कंधा मिलाकर कि हमारे नबी की तौहीन जहाँ भी होगी हम शीशा फैलाई हुई दीवार की तरह सामने खड़े होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। अब नजमुल इस्लाम हाशमी साहब आपसे गोया हैं, अपने अल्फाज से आप लोगों को मज़ूज़ करेंगे। नजमुल इस्लाम हाशमी साहब। इस रैली के शुरका को दिल की अथा गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ और अपने रब्बे अज़ीम का शुक्र अदा करता हूँ कि इस अज़ीम फरीज़े के लिए उसने हमें चुना, उसके हुक्म से आज हम यहाँ खड़े हैं अपने नबी की हुर्मत पे कुर्बान होने के लिए। कौन सा नबी, किस नबी के लिए आज आए हैं? वो नबी जिसने ताइफ में पत्थर खाए, किसके लिए? इस उम्मत के लिए, जिसने 6.5 घंटे मैदान अरफात में ऊँट पर चढ़कर हाथ यूं बुलंद करके दुआ करता रहा, या रब्बी उम्मती उम्मती उम्मती, इस उम्मत को बख्श दे। वो नबी जो दुनिया से रुखसत हो रहा था तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम से कह रहे थे कि मेरे रब से वादा ले लो, मेरी उम्मत का क्या करोगे? उस उम्मत के लिए, और जिसके लिए जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए, उन्होंने कहा या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप कहें तो पहाड़ों को टकरा दूं, इनको जलील ख्वार नीस्तो नाबूद कर दूं। उन्होंने कहा नहीं, इनमें से कुछ पैदा होंगे जिनमें ईमान की दौलत जिनको नसीब होगी। उस नबी के लिए, उस नबी जिसने इस उम्मत के लिए अपने निवासों को शहीद कर दिया, करबला में शहीद कर दिया। और हुक्मरानों, तुम्हारा भी नबी वही है, आर्मी चीफ तुम्हारा भी वही नबी है, ISI चीफ तुम्हारा भी वही नबी है। हम किसी को तकलीफ नहीं देना चाहते, हम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवाने सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रैली में गुलाम कर रहे हो। और हमें ऐसी गुलामी आज बचाने के लिए नहीं चाहिए, हमें आज अपना नहीं बचाना। और तुम इन कुफार के नीचे लगे हो, और देखो तो सही 313 ने 1000 का मुकाबला किया। छोड़ो दूर की बात, हो तो नबी के दौर की बात थी। और जाओ अफगानिस्तान में, और पूरी दुनिया उन तालिबान के खिलाफ आई, लेकिन नबी के रास्ते पे नबी की सुन्नत को पकड़ कर चलने वालों ने पूरी दुनिया को निस्ते नबूद किया। किस बात से खौफ खा रहे हो? हमें अपना आज नहीं बचाना, हमें बचाना है तो नबी की हुर्मत बचानी है, कुर्बान होना है, और फैसला तो तुमने करना है। कौन तो तैयार बैठी है मरने के लिए? बोलो तैयार हो? नबी की हुर्मत पे शहीद होने को तैयार हो? हमारी बात सुनो और छोड़ो इन कुफार को, इन यूरोप को, इन मगरिब के हुक्मरानों को, और ये मुसलमानों पे भी जो गद्दार बैठे हैं, जो ये भी नहीं कर सकते कि इस्लामी सरबराहों की एक कॉन्फ्रेंस ही बुला ले और तुम एहतजाज तो कर दो। तुमसे होता तो और कुछ नहीं, लेकिन मैं एक बात मुसलमानों तुमसे कह दूं, एहतजाज से कुछ नहीं होगा। जब तक जहाद का अलम बुलंद नहीं करोगे, अपनी तलवार उठाओगे नहीं, इन कुफार का मुकाम नहीं हो सकता। बहुत बहुत शुक्रिया। अब आपके सामने तशरीफ़ लाते हैं हाफ़िज़ उसामा साहब खानपुर से, जो हमारी रैली के साथ इधर चकवाल 15 तक आए, और ये अब अपने अल्फाज से आपको गोया करते हैं। सुने हाफ़िज़ उसामा साहब। गुस्ताख नबी की एक ही सज़ा, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, इन्ना शानिअका हुवल अब्तर, बेशक आपकी दुश्मन ही हमेशा नाकाम व नामुराद है। और हम यहाँ पर क्या करने आए हैं और हमें आका अलैहिस्सलाम से क्या मिलेगा, इसका जवाब हज़रत हसन बिन साबित रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दीवाने हसन के इस शेर से मिल जाता है। हज़रत हसन बिन साबित रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, आपने इरशाद फरमाया था, हजौता मुहम्मदन फ़अजबतु अन्हु,
वइंदल्लाहि ज़ाकल जज़ा। आपने फरमाया कि तुम ए नबी के दुश्मनों, तुम हुजूर पर एतराज करते हो, हजौता मुहम्मदन, तुमने नबी के हिज्र की नापाक कोशिश की है, फाजब तो अन हो, तो मैं उनकी तरफ से जवाब देता हूँ। आज हम सुन्नत हसान अदा करने के लिए यहाँ पर खड़े हैं और हम अपने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से अपनी बसात के मुताबिक जवाब देने के लिए खड़े हैं। वइंदल्लाहि ज़ाकल जज़ा, और इसकी जज़ा हम अपने रब की तरफ से मांगते हैं। और हमें पुख्ता उम्मीद है कि क़यामत वाले दिन ये घड़ियाँ हमारे लिए आम घड़ियों की तरह नहीं होंगी, बल्कि ये घड़ियाँ हमारी शफाअत के लिए इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ काफ़ी शाफी होंगी। और हज़रत कतादा हुजूर की बारगाह के अंदर जब अपनी आँख का ढेला पकड़ कर लाए, हुजूर ने एक दुआ से उनको नवाजा। हुजूर ने अपने रब की बारगाह के अंदर अर्ज किया, अल्लाहुम्मा कतादा कमा बका कतादा वजह नबी का, ऐ रब्बे ज़ुल जलाल, तू कतादा को इसी तरह जहन्नम की आग से महफूज कर ले जिस तरह इसने तेरे नबी के चेहरे को महफूज किया। तो हमें पुख्ता यकीन है कि हमारे नबी हमारी तरफ से इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ अपने रब के हुजूर ये ज़रूर दुआ खैर करेंगे कि ऐ रब्बे ज़ुल जलाल, उन 15 के अंदर ऊपर चौक के अंदर खड़े गुलामों को जहन्नम की आग से उसी तरह महफूज फरमा जिस तरह तूने उनको महफूज फरमाया था। तो आप और हम अपनी बसात के मुताबिक ये ऐद करना चाहते हैं कि इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ हम फ्रांस के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनको अपनी बसात के मुताबिक उसको बाइकाट करने की कोशिश करेंगे। तमाम अहबाब इस चीज़ का ऐद करें। बाकी हम इस चीज़ का जिम्मेदार नहीं है कि हमारे बाइकाट करने से उनको कितना नुकसान है। हम इस चीज़ के जिम्मेदार हैं कि हम उनसे नफरत का इजहार क्यों कर रहे हैं और किस बुनियाद पर कर रहे हैं। गुस्ताख नबी की एक ही सज़ा, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा। अब आपके सामने तशरीफ़ लाते हैं जो खानपुर से रैली को गाइड कर रहे हैं और अब हम मौजूद हैं चकवाल 15। तो ये आपके सामने तशरीफ़ लाए हैं मलक वसीम करामत साहब और उन्होंने अपनी सरकार मदीना की खिदमत में अपनी हाज़िरी लगवाई। तमाम भाइयों का बहुत शुक्रिया। उसके साथ ही मैं ये वक्त के हुक्मरानों को ये बात बताना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों ने फ्रांस एम्बेसी बंद ना की या अपना सफ़ीर फ्रांस से वापस ना मंगाया तो हम इस पे खामोश नहीं बैठेंगे। इंशाअल्लाह इस रैली को वसी पैमाने पर इस्लामाबाद तक लेके जाएंगे और इंशाअल्लाह हर चकवाल से हर गांव से फिर हम रैली निकालेंगे। आप जितनी जल्दी हो सके अपना सफ़ीर, उनका नहीं भेज सकते अपना तो मंगा सकते हैं ना, अपना सफ़ीर फ्रांस से मंगवाएं। और ये जो आपने कहा कि हफ्ता इसके रसूल मनाते हैं, मुझे इससे इख्तलाफ है। हम इंशाअल्लाह जब से पैदा हुए हैं और मरते दम तक हमारे दिलों में इसके रसूल रहेगा और हमारी पूरी ज़िंदगी इसके रसूल में गुजरेगी। ये हफ्ता हम सिर्फ नहीं मनाएंगे, हम इंशाअल्लाह अपनी पूरी ज़िंदगी। उसके बाद जितनी आप भाइयों से गुजारिश है कि जिसकी जितनी इस्तात है उसके मुताबिक फ्रांस की जितनी मंसूबात है उसकी आप इंटरनेट पे देख लें, उसकी मौजूद होगी जो उनकी मंसूबात है वो उनका बाइकाट करें और सच्चे दिल से करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फ्रांस ने ये एक दफ़ा नहीं मुझे बार ये गुस्ताखी की है, इसलिए हम फ्रांस के ख़िलाफ़ ये सिर्फ निकाल रहे हैं और तमाम यहूदियों के ख़िलाफ़ निकाल रहे हैं। मैं आपके सामने इस चीज़ का ऐद करता हूँ कि अगर फ्रांस की दवाई अगर मेरी मौत भी आ जाए तो मैं उनकी दवाई भी इस्तेमाल नहीं करूँगा। ये दुमन से आए हमारी रैली के साथ शहजाद साहब, आप शहजाद साहब आपसे गोया हैं, आप इनके अल्फाज को सुनकर अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका जो दुश्मन है वो बिल्कुल बेनामो निशान हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। जिसका उतरा न खतरा, मतलब जिसकी कोई औलाद ना हो, ये भी पंजाबी में तर्जुमा किया जाता है। शान अवलब्तर। मेरे दोस्तों, मैं सिर्फ चंद ये चीज़ें अर्ज़ करूँगा कि आप इस तरह करें कि जितनी प्रोडक्ट्स हैं फ्रांस की, जिन दोस्तों को पता है प्रोडक्ट्स फ्रांस की, वो शेयर करें ताकि नौजवानों को पता चले कि फ्रांस की कौन कौन सी प्रोडक्ट्स हैं जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं। जब हमें पता नहीं होगा, नौजवानों को इल्म नहीं होगा इस बारे में, तो
کس طرح یہ بائیکاٹ کریں گے؟ سب سے پہلے میں یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ فرانس کی جو پروڈکٹس ہیں وہ ان کا ہم بائیکاٹ کریں۔ اس کے علاوہ ہم اس معاملے کو یہاں رکنے نہ دیں، سوشل میڈیا پر اس کو وسیع پیمانے تک پہنچائیں، اور جس طرح وسیم صاحب نے پہلے فرمایا کہ ہم اس ریلی کو لے کر اسلام آباد جائیں گے، اور اگر ضرورت پڑی تو ہم ان کے امبیسی کے سامنے بھی پہنچیں گے۔ وہ امبیسی بند کی جائے، یہاں سے سفیر کو ہٹایا جائے اور ان کی پروڈکٹس کا مکمل بائیکاٹ کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عملی طور پر ساتھ چلنے کی توفیق عطا۔ اور جنت کے بدلے ہم بھول جائیں مدینے کی گلی کو، ورنہ ایسا سودا ہم نہیں کرتے، ایسے سودے میں نقصان ہے مولا۔ تم سرکار مدینہ کی بات کرتے ہو، ہم سرکار مدینہ گلی مرتے ہیں۔ اب نعرہ لگائیے، نعرہ گون کرنے میں قبلہ پیر صاحب کے سامنے مائک لیے جا رہا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ نعرہ رسالت، ہم اپنے نبی کے گون پر دیتے گوار کے اندر، ہم اپنے نبی کے، اور یہ سارے انتظامیہ والے بھی سرکار کے دیوانے ہیں، ان کے چہرے بتا دیں کہ ہم تمہارے ساتھ کھڑے، ہم اپنے نبی کے، 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 ہم اپنے نبی کے۔ بلا تاخیر مائک حوالے کر رہا ہوں صاحبزادہ پیر سید جلال حسین شتا بخاری، آپ اپنے خیالات سے ہمارے قلب و اذان کو منور فرمائیں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وتعزروه وتوقروه وتصبحوه بكرة وأصيلا، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما۔ یک آواز ہو کے یہ 15 چوک پہ، تاکہ یہ در و دیوار، یہ دکانیں، یہ بازار، یہ چوک، ہر ایک آپ کا گواہ بن جائے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ گواہی پیش کرے گی یہ جگہ، تو یہاں آپ کی صدائیں بلند ہونی چاہیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ حمد و صلاۃ کے بعد نہایت ہی قابل صد احترام ہمارے خانپور سے آئے ہوئے علماء کرام، نہایت ہی قابل صد احترام بھائی ملک امتیاز صاحب، اور بالخصوص بھائی ملک وسیم کرامت صاحب، ملک شہزاد صاحب، ہماری مرکزی میلاد کمیٹی خانپور کے صدر ملک شاہد ایوب صاحب، اول سے لے کے آخر تک آج آپ کے اس ریلی کا جو مقصد تھا اور جس نیت کے ساتھ میں آپ سب ایک آواز ہو کر یہاں اکٹھے ہوئے، وہ یہی تھا کہ محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے۔ محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر ذرا بھر بھی خامی تو دوستو پھر سب کچھ نامکمل ہے۔ میں دل کی عطا گرائیوں سے پہلے مبارکباد پیش کرتا ہوں اپنے ان بھائیوں کو جنہوں نے یہ اہتمام کیا، مجھے بھی دعوت دی، اور میں اکیلا نہیں آیا، میرے 2 ہی بیٹے ہیں، میں بمائی فیملی آیا ہوں۔ میرا بڑا بیٹا 9 سال کا ہے، وہ بھی آیا ہے، چھوٹا 2.5 سال کا ہے، وہ بھی ہے، ایک کا نام حسین ہے، ایک کا نام حسن ہے۔
ہمیں حسنین کریمین کی بارگاہ سے جو سبق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ حسن بھی مصطفیٰ پہ قربان، حسین بھی مصطفیٰ پہ قربان، اور ہم ان صحابہ کے ماننے والے ہیں جو صدیق اکبر بھی رسول اللہ پہ قربان، جو فاروق اعظم بھی رسول اللہ پہ قربان، جو عثمان غنی ذوالنورین بھی رسول اللہ پہ قربان، علی شیر خدا تاجدار حلاتا امام الاولیاء کرم اللہ وجہ کریم بھی ذات رسول پہ قربان۔ ہمیں ان صحابہ کی بارگاہ سے جو فکر ملی ہے، جو درس ملا ہے، جو پیغام ملا ہے، جو مالک کائنات نے کتاب لا ریب کے اندر ہمیں حکم دیا ہے، سب سے پہلے وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ ساری عزت محمد عربی کے لیے ہے، ساری تعظیم محمد عربی کے لیے ہے۔ ہم ان ممالک کو اور ان حکمرانوں کو پاؤں کی نوک پہ رکھتے ہیں جو ہمارے نبی کے ساتھ بغاوت میں شامل ہوں گے۔ نگاہ عشق و مستی میں نگاہ ہے، یہ کیوں آج دیوانے کٹھے ہوئے ہیں؟ ہر ایک یہی پیغام دے رہا ہے۔ میں آج سوشل میڈیا کے ذریعے اور اپنے ان جتنے بھی میڈیا کے حضرات تشریف فرما ہیں ان کے ذریعے یہود و نصارہ تک اور ہر اس بندے تک جو ہمارے نبی کی کسی طرح بھی تعظیم و تکریم کے خلاف ہے، ہم اسے یہ آج یہ پیغام دے رہے ہیں۔ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول، وہی آخر، وہی قرآن، وہی فرقان، وہی یاسین، وہی طٰہٰ۔ ہمیں صحابہ کی بارگاہ سے جو سبق ملا ہے وہ یہ ہے کہ ایک جنگ کے اندر باپ بیٹا دونوں کٹھے ہو گئے۔ باپ رسول اللہ کی غلامی میں ہے جسے صدیق اکبر کہا جاتا ہے، اور بیٹا عبد الرحمن ابھی اسلام قبول نہیں کیا، تلوار چل رہی ہے۔ باپ رسول اللہ کی غلامی میں ہے، بیٹا رسول کے خلاف نکلا ہوا ہے، تلوار چلتی رہی، شہادتیں ہوتی رہی، کافروں کے گلے کٹتے رہے۔ جب معاملہ ٹھنڈا ہو گیا، باپ بیٹے کے رشتے کے حوالے سے کٹھے ہوئے تو بیٹا کہنے لگا آپ کئی بار میری تلوار کے نیچے آئے لیکن میں نے باپ سمجھ کے چھوڑ دیا، سنو ہم اس صدیق اکبر کے غلام ہیں۔ فرمایا بیٹا رب کی عزت کی قسم اگر تو ایک بار بھی صدیق اکبر کی تلوار کے نیچے آتا گلا کاٹ دیتا، ایک بار بھی تو ابو بکر کی تلوار کے نیچے آتا تو میں تجھے نہیں دیکھ رہا تھا کہ تو میرا بیٹا ہے، میں نے تمہیں دیکھ رہا تھا کہ میرے آقا کا تو گستاخ ہے، منکر ہے، تیرا گلا میں نے کاٹ دینا تھا۔ ہم ان کے ماننے والے ہیں، ہم گردنیں کٹوانا بھی جانتے ہیں، اور جو ہمارے نبی کی تعظیم و تکریم نہ کرے، کسی لحاظ سے بھی گستاخی کرے، ہم اس کی جان لینا بھی جانتے ہیں۔ محمد کی دیوانے 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 یا رسول اللہ۔ ہم میں سے آج ہر ایک یہی پیغام دے رہا ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم پھر تیرے ہیں، پھر فقط ہم نہیں، پھر یہ جہاں چیز ہے کیا، پھر لوح و قلم بھی تیرے ہیں۔ آؤ محمد عربی کے وفادار بن جاؤ، محمد عربی کی غلامی کا پٹا گلے میں ڈال لو، پھر اس دنیا میں بھی عزت مل جائے گی، قبر میں بھی عزت ملے گی، حشر کے دن بھی رسول اللہ کے جھنڈے کے سائے تلے جگہ نصیب ہو جائے گی۔ ہم آج پرزور مذمت کرتے ہیں اس فرانس اور فرانسیسیوں کے ان سیاستدانوں پر جنہوں کی مدد سے، جن کے ارادوں سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی کی گئی، اور ہم آج ہر ایک اپنی طرف سے اسے لعنت بھیجتے ہیں اور ان کے ساتھیوں پر لعنت بھیجتے ہیں، اور حکومت وقت سے ہم یہ مطالبہ رکھتے ہیں صدر صاحب، وزیر اعظم صاحب اور چیف آف آرمی سٹاف
آپ بھی اسی نبی کے کلمہ پڑھنے والے ہیں، اپنا حق ادا کریں، اپنا ایمان، اس کی جو جرت ہے، جو قوت ہے، جو شجاعت ہے، جو رسول کی غلامی میں ہونی چاہیے، اس کا اظہار کریں۔ اندر خانے گھس کے بات نہیں بنے گی، کیونکہ ہمارے نبی کی شان اتنی اعلیٰ ہے کہ حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ روح اللہ تک ہر نبی ہمارے نبی کی تعظیم کرنے والا ہے۔ بالغ العلا بکمالہ کشفت تجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلوات اللہ۔ آقا جی جانے کر کافی سہارا لے لیا ہے در تمہارا، خلقی کے وارث خودارا، خلقی کے وارث خودارا، ہلو سلام اب تو ہمارا، یا نبی سلام، یا الہی واسطہ، حرمت رسول اور واسطہ آل رسول، اور یہ سلام عاجزانہ ہو قبول۔ میں ایک دفعہ پھر دہلی کے تمداس چوک سے لے کر 15 تک تشریف لے کر آئے، انتظامیہ کے ساتھی آئے، سیاسی حضرات آئے، میرے انتظامیہ کے بہت سارے ساتھی تشریف لے کر آئے۔ میں سب کا اپنی جانب سے نہایت عزت کے لائق ملک وسیم کرامت صاحب کی جانب سے، اپنی مرکزی میلاد کمیٹی کی جانب سے، بزم غوثیہ کی جانب سے، خانپور کے ہر بچے کی جانب سے دل کی تھا گرہنوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ لفظ سے سب سے دعا خیر کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وآلہ وبارک وسلم علیہ۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننا فی بحر غم مغرق خذ بیدی ساحل لنا اشکا لنا۔ یا رسول اللہ بفریادم برس، یا حبیب اللہ ندار ہم جھت کس، مشکل ہم پیش است مندر بے کسی۔ یا رسول اللہ ہمارا تم بسی، یا الہی کرم کیجو مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجو خدا کے واسطے۔ مشکلیں آسان ہوں شاہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے۔ امداد کن امداد کن از رنج و غم آزاد کن، در دین دنیا شاد کن، یا غوث العظم دستگیر۔ یا رسول اللہ ہمارا من بھی آپ کے صدقے، ہمارا تن بھی آپ کے صدقے، ہمارے والدین بھی آپ کے صدقے، ہمارے بیوی بچے بھی آپ کے صدقے، ہماری جانیں بھی آپ جہاں قدم مبارک رکھتے ہیں اس کے نیچے آنے والے ذروں پہ صدقے۔ یا رسول اللہ یہ ہمارے ساتھیوں کی دوستوں کی اس کاوش کو اپنے بارگاہ میں قبول فرمانا۔ اے میرے کریم مالک، اپنے محبوب کی عظمت کے صدقے، اپنے محبوب کی حرمت کے صدقے، اپنے محبوب کی شان و شوکت کے صدقے، اے میرے کریم مالک آج یہ جو تیرے نبی کے غلام تیری محبوب کی عزت کے لیے، ناموس و رسالت کے لیے تیرے محبوب کے دشمنوں کے خلاف نکلے ہیں، میرے مالک تو ان سب کی عزتوں میں اضافہ فرما، تو ان سب کے رزق میں برکت عطا فرما۔ میرے کریم مالک ہم سب کے ظاہر باطن کو پاک و صاف فرما، ہم سب کو صراط مستقیم پہ چلنے اور قائم رہنے کی توفیق عطا فرما۔ ذکر خدا کے ساتھ یہ پیشانیاں اپنی بارگاہ میں نماز کی صورت میں جھکانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم آتنا خیر الدنیا و خیر الآخرہ واصرف عنا شر الدنیا و شر یوم الآخرہ، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔ علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
व तुअज़्ज़िरूहु व तुवक्किरूहु व सब्बिहूहु बुक्रतन व असीला। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबी या हबीबल्लाह। अल्लाह ताला जल्ला व अला शानहू की आमदो सना के बाद करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के हुजूर निहायत ही गुलामाना आजिज़ाना सलातो सलाम का तोहफा भेजने के बाद मेरे निहायत ही वाजिबुल एहतराम सादात उज़्ज़ाम बिलखुसूस इजलाल शाह साहब बुखारी मदज़िल्लाहुल आली उलमाए ज़ी वक़ार सनाखान मुस्तफ़ा मुअज़्ज़ज़ सामीन हज़रात, जैसा कि आप तमाम अहबाब को इल्म है, माह रबीउन नूर शरीफ की ये दूसरी महफ़िल पाक बरमकाम हाजी और हरमैन शरीफैन हाजी इमाम अली कादरी साहब के आस्थाना पर इनकार पजीर है। आपको भी बुलाया गया और मुझे भी बुलाया गया। मैं आपकी इस रौनक को देखकर बहुत खुश हुआ हूँ और दुआ देता हूँ कि तादम वापसी अल्लाह आपके मुकद्दर में ये घड़ियाँ बार बार नसीब फरमाए। इस दुआ के बाद बहुत सारे उलमा सनाखान हज़रात मुझे जानते हैं। मैं आपका वक्त बिल्कुल एक सेकंड भी ज़ाया नहीं करूँगा। मुझे पता है कि मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु पर मुझे बुलाया गया है और मैंने क्या कहना है, लेकिन हालात के मुताबिक आगाह करना भी ज़रूरी है। मेरे अज़ीज़ों मेरे भाइयों, चाहे कोई सुन्नी हो या अहले तशरीह हो, देवबंद हो या अहले हदीस हो, जिस मकतब फिक्र के साथ कोई तल्लुक़ रखता है, अपने मकतब फिक्र के हवाले से तमाम उम्मत मुसलमान का ये मुतफ़िका अक़ीदा है कि काबा काबतुल्लाह है। चंद लफ्ज़ों में बस बात को समेट कर सलाम पढ़ते हैं और उसके बाद मैं आपको इजाज़त दूंगा। ये जो वक्त आपको मुयस्सर आया, इस वक्त के अंदर सिर्फ तवज्जो के साथ मेरी बात को समझना। अर्ज़ कर रहा हूँ कि काबतुल्लाह है। हर उम्मती जिस मकतब फिक्र के साथ ताल्लुक़ रखता हो वो उसकी तरफ मुँह करके नमाज पढ़ता है। जहां बात के अंदर कोई मशरक की तरफ मुंह नहीं करता, शुमालो जुनूब की तरफ मुंह नहीं करता, जब भी नमाज का वक्त हो तो सीधा किबला की तरफ मुंह करके मुंह तरफ खाना काबा शरीफ अल्लाह अकबर कह के अपनी नमाज को शुरू करता है। और हमारा ये ईमान और हमारा ये अकीदा है, नऊज़ुबिल्लाह अल-याज़ुबिल्लाह, नऊज़ुबिल्लाह अल-याज़ुबिल्लाह, काबतुल्लाह शरीफ की तरफ थूकना हराम है। काबतुल्लाह शरीफ की तरफ कगार फेंकना हराम है। काबतुल्लाह शरीफ की तरफ पेशाब करना हराम है। काबतुल्लाह शरीफ की तरफ जानबूझकर टांगे किबला की तरफ करना हराम है। मेरे अजीजों मेरे भाइयों, ये काबा का एहतराम है। जिस काबा की तरफ हम मुंह करके नमाज पढ़ते हैं, अब उस काबतुल्लाह की तरफ पेशाब जानबूझकर अगर कोई मुंह करके करेगा, हराम है, दायरा इस्लाम से खारिज है। ना नऊज़ुबिल्लाह काबतुल्लाह की तरफ कंगार जानबूझ के फेंकेगा, दायरा इस्लाम से खारिज है। काबतुल्लाह की तरफ पाखाना करेगा मुंह करके, टांगे करेगा, दायरा इस्लाम से खारिज है, क्योंकि काबतुल्लाह का एहतराम फर्ज है।
मेरे भाइयों, मेरे अजीजों, अब काबे से सवाल करो कि ऐ काबा, तू तो काबतुल्लाह है, क्या तेरा भी कोई काबा है? सुभान अल्लाह। बस मिलाद का मकसद पूरा हो जाएगा। आवाज आती है काबा मिन जिदार काबा, काबा की दरो दीवार से आवाजें आती हैं और आई कुतुब में मौजूद है। और हमारे इमाम आला हजरत रहमत ने क्या खूब फरमाया। आप फरमाते हैं हाजियो आओ शहनशाह उमम का रौज़ा देखो, हाजियो आओ शहनशाह उमम का रौज़ा देखो। काबा तो देख चुके, अब काबे का काबा देखो। काबा तो देख चुके, अब काबे का काबा देखो। अज़ीज़ान गिरामी, मेरे और आपके नबी काबतुल्लाह के भी काबा हैं। अब जो परसों जनाजा था अमरीला के अंदर, वहां पर मैंने ये बात लोगों को अर्ज की। ये कलमा पढ़ने वाले मुसलमानों में कुछ ऐसे मुसलमान भी दावा करते हैं कि नऊज़ बिल्लाह मिलाद शिरक है। कोई कहते हैं कि नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिका हुज़ूर की ताज़ीम ना करो, जबकि रब करीम कुरान करीम के अंदर खुद इरशाद फरमा रहा है। अल्लाह ताला जल्ला वाला शान ने फरमाया वतुअज़्ज़िरूहो वतुवक्किरूहो वतुसब्बिहूहो बुक्रतन व असीला। अल्लाह ने फरमाया मेरे महबूब की ताज़ीम करना, मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत करना और सुबह शाम अल्लाह ताला की पाकी बयान करना। रब कहता है मेरे कमली वाली आका अलैहिस्सलाम की ताज़ीम करो, रब फरमाता है कमली वाली आका अलैहिस्सलाम की इज्जत करो और अल्लाह रब्बुल आलमीन की तस्बीह सुबह शाम बयान करो। जब रब ने फरमाया कि कमली वाली आका अलैहिस्सलाम की इज्जत करो, नबी करीम अलैहिस्सलाम की तौकीर करो, नबी करीम अलैहिस्सलाम की ताज़ीम करो, जब रब ये फरमा रहा है तो क्या कलमा पढ़ने वाले उम्मती का हक बनता है या नहीं कि कमली वाली आका अलैहिस्सलाम का अदब करे? कलमा नबी का पढ़ते हैं और नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिका उस जात के ऊपर कीचड़ उछालने की नापाक जसालत करते हैं। आगे मेरे कमली वाली आका अलैहिस्सलाम की बात सुनो, बस मेरा हाजिरी मुकम्मल। एक दफा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकरमा के अंदर तशरीफ फरमा थे। बचपन की आपकी उम्र मुबारक है, तो बचपन की आलम में आके जहान अलैहिस्सलाम अरफात की तरफ निकले। चलते 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 अरफात के करीब पहुंच गए और आगे से आपका चचा अबू जाल आ रहा था। और अबू जाल ने जब देखा कि ये मेरा भतीजा है तो उसने कहा कि भतीजे मैं ऊँटनी को बिठाता हूँ, तू भूल कर इधर आ गया, मेरी ऊँटनी पे बैठ जाओ, मैं तुझे वापस मक्का लिए चलता हूँ। अबू जाल सारी जिंदगी भतीजा भी समझता रहा, नबी नहीं माना, किस्मत में ईमान नहीं था। कहता है भतीजे मैं ऊँटनी को बिठाता हूँ, मेरे पीछे बैठ जाओ, आप भूल गए हैं। और नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिका भूल कर भी ये ना कहना कि हमारा नबी भूल गया, हमारा नबी तो भूलता है ही नहीं। आए तो तभी फिर भी अपनी उम्मत को याद किया। अर्शे उला पे गए, मेराज की रात को अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को याद फरमाया, बुलाया नहीं। और जब आखिरी वक्त था तो फिर भी इस गुनहगार उम्मत को याद फरमाया और बख्शिश के लिए खुदावंद करीम की बारगाह में अर्ज की। अबू जाल कहने लगा कि आइए। जब उसने नाका को बिठाया तो सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम को पीछे बिठाया। अब उसने ऊँटनी की मुहार पकड़ी और उठाने की कोशिश की। जो कोशिश है, जो कर सकता है, जो कर सकता है, जो उससे हो सकता है, उसने कोशिश की
कि नाका खड़ी हो जाए और मैं इनको मक्का मुकरमा में ले चलूं, लेकिन अल्लाह ताला की कुदरत देखो, मार मार के ऊँटनी को लहूलुहान कर दिया, लेकिन ऊँटनी उठने का नाम नहीं लेती। आखिर मेरे कमली वाले आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, चाचा तुम मानता तो नहीं, लेकिन मैं एक बात कहता हूँ। अबू जहल कहने लगा, बस ये कहिए। आपने फरमाया, ऐसे कर लेते हैं, आप पीछे बैठ जाए, मुझे आगे बैठा दें, और उसके बाद देखते हैं कि लाठी चलने का नाम लेती है या नहीं। अज़ीज़ान गिरामी, अबू जहल ने कहा चलो ऐसे कर लेते हैं, बच्चा समझ के, नबी समझ के नहीं, नऊज़ुबिल्लाह भतीजा समझ के। उसने कहा कि ऐसे कर लेते हैं। आखिर मेरे कमली वाली आका अलैहिस्सलाम नाका के ऊपर बैठ गए, चचा जो है पीछे है और अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम आगे बैठे। अज़ीज़ान गिरामी, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊँटनी पर बैठ गए, लिखने वालों ने लिखा, सुनने वालों ने सुना, पढ़ने वालों ने पढ़ा। मेरे अज़ीज़ान गिरामी, जब मेरे कमली वाली आका सल्लल्लाहु आगे बैठते हैं तो नबी करीम अलैहिस्सलाम के अदब की वजह से ऊँटनी खड़ी हो जाती है और मक्का की तरफ चलना शुरू हो जाती है। अगर हैवान कमली वाली आका अलैहिस्सलाम का एहतराम जानते हैं तो तुम इंसान नबी का कलमा पढ़ने वाले अपने नबी के बारे में क्या कहते हो? गज वज के हजूर का मिलाद मनाओ, हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम की महफिल पाक के अंदर बाअदब आओ, सर से नंगे आओ, बेवुजू आओ, बावजू होकर आओ, खाने के लालच में ना आना, अपने महबूब को राजी करने के लिए आ जाना। अगर पहली उम्मतों का ये हाल था तो हम तो रसूलुल्लाह के खुश नसीब उम्मती हैं कि हमारे हिस्से में मिलाद मुस्तफा की महफिल है। अल्लाह ताला ने हम सबको नबी करीम अलैहिस्सलाम की उम्मत में पैदा फरमाया है। मेरे भाइयों, मेरे बच्चों, पीराने उज़ाम, उलमाए ज़ीवकार, क्या आपने ये पढ़ा नहीं कि वाब बिन मंबा इस हदीस पाक के रावी हैं कि बनी इसराइल में एक शख्स था, वो जब भी तौरात मुबारक खोलता हदीस पाक सुनिए, सैयद आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलामों इज़ा नशरत तौरात, जब वो तौरात को खोलता, ववजदा इस्म मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तौरात के अंदर नबी करीम अलैहिस्सलाम का नाम पढ़ा। जब मेरे कमली वाली आका अलैहिस्सलाम के नाम की तरफ उसकी तवज्जो गई, मेरे दोस्तों, मेरे लोग, फौरन कमली वाली आका अलैहिस्सलाम का नाम उस तौरात के अंदर जहाँ जहाँ लिखा हुआ था चूमना शुरू कर दिया, आंखों पे लगाना शुरू कर दिया। अज़ीज़ान गिरामी, इज़ा माता, जब वो मर गया, बनी इसराइल के लोगों ने बजाय उसका जनाजा पढ़ने या कफन दफन करने के बजाय उसको जनाब उसको मज़बरा पे डाल दिया, यानी ढेर पे डाल दिया, काजूरात पे ऊपर डाल दिया। जब अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत जोश में आई, अल्लाह ने कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम फरमाया, मूसा अलैहिस्सलाम मेरा एक खास बंदा अल्लाह को प्यारा हो गया, उसका जनाजा भी पढ़ना है, कफन दफन भी देना है और उसको दफन भी करना है। या अल्लाह वो किधर है? अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम तेरा उम्मती है और काजूरात यानी ढेर के ऊपर जनाब उसकी मैयत पड़ी हुई है, लोग कोई जनाजा पढ़ने वाले नहीं। ए कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम जाओ उसका जनाजे का एहतमाम करो। जनाब तशरीफ लाते हैं, जनाब कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम गुस्ल देते हैं और फिर अल्लाह के हुक्म से उसका नमाज जनाजा पढ़ा गया। सारा बनी इसराइल कहने लगे कि ऐ कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम ये बड़ा गुनाहगार है, 200 साल ये गुनाह करता रहा और आप इसका जनाजा पढ़ाने के लिए कैसे आ गए? अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ की, या मेरे परवरदिगार आलम, ए मेरे प्यारे मौला जलील, मेरे उम्मती कहते हैं ये गुनाहगार है, मेरे उम्मती कहते हैं ये सियाकार है, ये कैसे बख्शा गया और आप इसका जनाजा पढ़ाने के लिए कैसे आ गए? या अल्लाह कर्म नवाज़ी फरमा। आखिर फ़अऊहा इला मूसा, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ वही फरमाई और इरशाद फरमाया, ऐ कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम मैं इस बंदे को देखूं या यार के अदब के देखूं। मुझे पता है कहां से लोग आए हुए हैं। फरमाया जब ये तौरात खोलता था तो तौरात के अंदर मेरे नबी का नाम पढ़ता था और इसकी ये आदत थी कि कमली वाली आका अलैहिस्सलाम के नाम को चूमता था। और मैं कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम
जो ये काम करता था वो तो अपनी जगह पर है, लेकिन यार का नाम चूम कर अदब करता था। और मुझे इसकी अदा पसंद आ गई। नाम मोहम्मद की ताज़ीम करने की वजह से मैंने खुदा करीम ने इसको बख्श दिया है। मूसा अलैहिस्सलाम, इसका जनाजा मैंने पढ़ाना है। कलीमुल्लाह जनाजा पढ़ो, और मैंने इसका बख्शिश का ऐलान कर दिया है। ताज़ीम मुस्तफ़ा की वजह से, ताज़ीम मुस्तफ़ा करने की वजह से मैं इस पर राजी हो गया हूँ, और इसकी खताओं को मैंने माफ कर दिया। सिर्फ खताओं को ही नहीं, बल्कि मैंने जन्नत के अंदर इसको 200 हूरों के साथ निकाह भी फरमा दिया है। नाम मुस्तफ़ा की ताज़ीम मेरे बच्चों, मेरे भाइयों, तकरीरें होती रहेंगी पूरा महीना, बल्कि जब तक जिंदगी है मैंने तो खुदा से यही मांगा कि या अल्लाह, या मरूं या तेरा जिक्र हो या मेरे मुस्तफ़ा का जिक्र तो है ना। मैंने तो सारी जिंदगी इस काम के लिए वक़्फ़ की है। मैं आपको लफ्ज़ों में चंद जुमले कह के इजाज़त देता हूँ कि नबी करीम अलैहिस्सलाम का अदब करना, अदब से महफिल में आए, और जितनी देर बैठते हैं अदब से बैठकर वापस जाएं। इंशाअल्लाह खाली नहीं जाएंगे, और सब कुछ अदब के अंदर है। बस आखिरी बात कह के जल्द आप जानते हैं ना, सुल्तान महमूद गजनवी रहमतुल्लाह ताला अलैह गजनी के बादशाह हैं, और ज़माने के वलीउल्लाह भी हैं, और अल्लाह ने आपको ये मकाम अता फरमाया था कि आप बेवुज़ू नहीं रहते थे, बल्कि हर वक्त आप बावज़ू रहा करते थे। और जो आपका गुलाम था उसका नाम था मोहम्मद अय्याज। क्या नाम था? बस आखिरी बात कह रहा हूँ, क्या नाम था? मोहम्मद अय्याज। मोहम्मद अय्याज की क्या ड्यूटी थी? उसकी ड्यूटी ये थी कि वो सुल्तान महमूद गजनवी को वज़ू करवाता था, वज़ू करवाता था। एक दिन ऐसे इत्तेफाक हुआ कि सुल्तान महमूद गजनवी अलैहि रहमत ने बजाय आवाज लगाने के खुद लोटा उठाया, हाथ धोए, वजू किया। वो बेचारा रो रहा है कि पता नहीं मुझसे क्या गलती होगी कि बादशाह वक्त मुझसे नाराज हो गए, मेरा आका मुझसे नाराज हो गया, मेरे बादशाह वक्त मुझ पे नाराज हो गए। आखिर जनाब जब आपने वजू कर दिया, सारा वजू करने के बाद आपने फरमाया मोहम्मद अय्याज इधर आओ, ए मोहम्मद अय्याज मेरे पास आ जाओ। कांपते हुए आए, और मैं जानता हूं मैंने तुझे क्यों ना बुलाया, तूने मुझे वजू क्यों ना करवाया, और मैं तुझे ड्यूटी सौंप रहा था, तू कर रहा था, लेकिन जानता है कि आज मैंने तुझे क्यों नहीं बुलाया और मैंने वजू खुद क्यों किया है। इमाम अली कादरी के घर में आने वालों, नबी करीम अलैहिस्सलाम का मिलाद मनाने वालों, हुजूर का अदब सीखो। जब अदब आएगा तो फिर इंशाअल्लाह ताला करम भी होगा, फिर अल्लाह ताला का फजल भी होगा, फिर अल्लाह ताला की आपके ऊपर रहमत भी होगी। आज हम मिलाद तो मनाते हैं लेकिन किसी पे असर नहीं होता। असर इसलिए नहीं होता कि हमारे दिल अदब से खाली हैं। आइए मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, सुल्तान महमूद गजनवी ने जब याद फरमाया, रोते हुए कांपते हुए हाजिर हुए। आपने फरमाया बेटा डरना नहीं, मुझे पता है तू मुझे वजू करवाता था, मुझे पता है तू हर वक्त मुस्तैद रहता है, और आज जब मैंने वजू करना शुरू किया मुझे पता था कि मैं खुद वजू कर रहा हूँ, लेकिन तूने क्यों ना बुलाया? और मैं इसलिए ना बुलाया, मैं नहीं चाहता था, आज मैं बेवजू था, आज मेरा वजू नहीं था, मैं नहीं चाहता था कि बेवजू बेअदबी के अंदर हुजूर का नाम मेरी जबान पर आ जाए। और मैंने वजू इसलिए किया कि ताकि वजू के बाद आपको बुलाऊं। और तेरा नाम मोहम्मद अय्याज है, और कमली वाली आका अलैहिस्सलाम का नाम तेरे नाम के साथ व्यवस्था है, और मैं नहीं चाहता था कि बेअदबी ना हो जाए। हुजूर का नामे नाविस भी ग्रामी बेजुबान या नऊज़ बिल्लाह बेवजू मेरी जबान से निकले, मैंने इसलिए तुझे ना बुलाया कि मेरा वजू नहीं था, अब मैंने वजू किया और तुझे बुला लिया। अज़ीज़ान ग्रामी वो भी थे जो बगैर वजू के हुजूर का नाम नहीं लेते थे, और हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम का अदब किया करते थे। हमें मिलाद तो नसीब हो गया, लेकिन बेवजू आगे सर से नंगे आगे जैसे मेला देखने के लिए जा रहे हैं। अज़ीज़ान ग्रामी कमली वाली आका अलैहिस्सलाम का अदब सीखो, नबी करीम अलैहिस्सलाम की मोहब्बत सीखो, नबी करीम अलैहिस्सलाम का इश्क सीखो। जब कमली वाली आका अलैहिस्सलाम के अदब के अंदर ये सारी बातें करोगे, अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम का तुम्हारे ऊपर
करम होगा। वो वजू करवाने वाला तशरीफ लाता है जफर साहब। नबी करीम अलैहिस्सलाम फरमाता है सल रबिया, ए रबिया मांगो क्या मांगते हो। जनाब रबिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ड्यूटी हजूर अलैहिस्सलाम को वजू करवाने की। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया ऐ मेरे प्यारे गुलाम मांग क्या चाहता है। गुलाम क्या चाहता है, चावलों की तमन्ना ना करना, शिरकी का जनाब ख्याल ना करना, पेट का ख्याल ना करना, जो दर मुस्तफा पे खैरात मिले टुकड़े खा के खुश हो जाना, एतराज ना करना। लेकिन मेरे कमली वाली आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया सल रबिया, रबिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मांगो। जनाब रबिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इधर देखते हैं उधर देखते हैं, आगे पीछे देखते हैं, ऊपर देखते हैं, नीचे देखते हैं, क्या आज रहमत लिल आलमीन की रहमत जोश में है। हुजूर इरशाद फरमाते हैं सल मांगो। फरमाया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेहरबानी करने पे आए हो या रसूल अल्लाह, मैं कोठा नहीं मांगता, मैं बंगला नहीं मांगता, ए मेरे कमली वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं कुमरपा नहीं मांगता या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बस छोटी सी आलू है। मेरे कमली वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता क्या चाहते हो। वो कहने लगे या रसूल अल्लाह अस आलू का मराफत का फिल जन्ना। ओ मेरे कमली वाले आका सल्लल्लाहु, ये जो वजू की ड्यूटी दुनिया में देता हूँ, मेरे कमली वाले आका सल्लल्लाहु देने पे आए तो मैं जन्नत में यही ड्यूटी मांगता हूँ। बस खत्म, थोड़ा आना खत्म, मेरा बोलना खत्म। बस अजीजा निगरानी अर्ज की थी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत में भी ड्यूटी मंगना चाहना वा। जन्नत दुनिया लबनी है मरना तो बाद बोलो शाबाश शाबाश। जन्नत दुनिया लबनी है या मरना तो बाद। मैं तो ये सुनिया कि अपने मरने तो बगैर बेशत नहीं लगी। ये मैं सारे लोगों को सुनिया जिन्हें कहते कि आप न मरिए ताकि जन्नत लपवे नहीं। जन्नत है वो मोया बगैर नहीं लगी, बेशत मोया बगैर नहीं लगी। पर जिस नबी ने मिलाद विच आयो उस कहा या रसूलल्लाह मैं जन्नत च नौकरी मंगना। आज मदीने पाक के अंदर दोवें सहाबी भी मौजूद है, हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम भी मौजूद है। मेरे कमली वाली आका अलैहिस्सलाम दा अगर ये जुमला हदीस के अंदर मौजूद ना होवे सैयद आशिक हुसैन शाह नु पकड़ लेना। मेरे कमली वाली आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया ए हजरत रबिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खुश हो जा, जिस तरह दुनिया के अंदर तू मैंने वजू करवाना है इसी तरह जन्नत के अंदर मेरा तू हमसाया होगा, जन्नत के अंदर तेरी नौकरी खुदा मंजूर फरमावेगा। वाले आका अलैहिस्सलाम ने मिला दिया महफिल जितने दिन तुहानू मेरे तो बाद जिस महफिल जो महफिल मौजूद हो सुन लिया और जो नहीं आए उन्होंने तक मेरा पैगाम पहुंचा देना। बेवजू नहीं होना, टाइम का खास ख्याल रखना ताकि गड्डी चलती रहे और कोई संगीत तंग भी न होवे और किसी अच्छे पढ़े लिखे बंदे को बिठा के तो हजूर दा मिलाद पाक सुनाया करो। मैं दुआ करसा वा तो अज़्ज़े रूह हो वा तो अज़्ज़े रूह हो वा तो वक्के रूह हो वा तो सब्बे रूह हो बुकरता व असीला। अल्लाह ताला तुम्हारी ये इबादत अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आखिर अंदर में होता है अजमत ताकत है जिसमें महमूद बस कलंदर तस्वीरें अली होता है। और शायरी लिखा है कि हर दौर में कोशिश से बहुत की गई, हर दौर में कोशिश से बहुत की गई, हर दौर में कोशिश से बहुत की गई, लेकिन कतरे के मुकद्दर में समुंदर नहीं आया। हैदर को समझ पाएगी, हैदर को समझ पाएगी पलटा से ये दुनिया की समझ में तो कलंदर नहीं आया। और हैं खुलने लगे दुनिया पे असरार कलंदर के, खुलने लगे दुनिया पे असरार कलंदर के। न मानेंगे किसी और को खुददार कलंदर के। अब आया है अगरचे दारे फितन महमूद, अब आया है अगरचे दारे फितन महमूद। हर मुश्किल को बदल देंगे दिलदार कलंदर के। और आपने दोनों हाथों से बुलंद अपने को करना है, पूरा सीने का जोर लगाना है।